اب میں چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مدونۃ الکبریٰ ہے میرے پاس، میں چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں، سنیے مولانا، چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کے نام پر آج جھوٹ چل رہا ہے، میں نے 5 جھوٹ پکڑے، ان کا جواب دوں گا، 5 جھوٹوں کا میں نے جواب لینا ہے مولانا، آج جان نہیں چھوڑے گی۔ یہ چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں مولانا، یہ رفع الیدین فی الرکوع والاحرام، یہ عنوان ہے کہ رکوع اور تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کا باب۔ او آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا رفع یدین ضعیف تھا سوائے تکبیر تحریمہ کے، تکبیر تحریمہ والا رفع یدین صحیح ہے، اس کے علاوہ ضعیف ہے۔ مولانا آگے دلائل دی ہیں، وہ دلائل سنیے، عن مالک ابن انس عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ، مولانا وہی سالم جن کا آپ نام دے رہے ہیں، عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح التکبیر للصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تھے، جب نماز کے شروع کے لیے تکبیر کہتے تھے اس وقت رفع یدین کرتے تھے۔ مولانا یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ چوتھی حدیث آگے، 5ویں حدیث میں پیش کر رہا ہوں، یہ نصب الرایہ، نصب الرایہ میں ہے، یہ خلافیات بہقی کے حوالے سے ہے، ابھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند پوری لکھی ہوئی ہے، عن عبداللہ ابن عون الخزاز حدثنا مالک عن الزہری عن سالم عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے، ثم لا یعود، دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ مولانا رکوع کا ذکر نہیں آ رہا، تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے، رکوع کا ذکر نہیں آ رہا، یہ ہے انتہا انصاف۔ یہ 6ویں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی دیکھ لیجیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ صحابی نے جو عمل کیا ہے تو مطلب یہ نا کہ آپ نے اسلام نے چھوڑ دیے، ذرا دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر دیکھیے۔ عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ۔ امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ صرف پہلی تکبیر کے اندر تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے۔ مولانا یہ عبداللہ ابن عمر نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ 6 حدیثیں میں پیش کر چکا ہوں، یہ 7ویں حدیث آ رہی ہے مولانا، یہ 7ویں حدیث آ رہی ہے اخبار الفقہاء والمحدثین میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے۔ سنیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ دوسری ٹرم میں پوری میں اللہ کا شکر ہے ایک بھی حدیث نہیں پڑھ سکے، پوری ٹرم میں ایک بھی حدیث نہیں پڑھ سکے۔ اچھا یہ سنیے، یہ 7ویں حدیث آ رہی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع۔ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ میں تھے تو نماز کے شروع میں بھی رفع یدین کرتے تھے، نماز کے اندر رکوع کے وقت بھی کرتے تھے۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ۔ مولانا کہ جب ہم نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، الحمدللہ بعد الصلاۃ والسلام علی جو 5 جھوٹ میرے مناظر نے پکڑے ہیں ان کا یہ جواب دیں۔ جو جھوٹ ان نے کہے ہیں ان نے نوٹ بھی کر لیے ہیں، اگر کوئی بھول گیا اب بھی پوچھ لیں ہم پھر بتا دیں گے۔ اپنی ٹرم میں 5 کا جواب دے کے آگے دلائل پڑھیں، ہمیں اعتراض نہیں، ورنہ ہم نہیں چلے جائیں گے، پڑھیں گے درمیان میں جواب دیں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ نہیں پہلے جواب لیں آپ یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ چلتا رہے، جھوٹ ہے نا، آپ جھوٹ سے نہیں مانتے تھے، نہیں اگر جھوٹ نہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ ہو ہم نے مطالبہ کیا، ہم نے پہلے پورا کیا ہے، بخاری شریف سے محدثین پیش کر دیے، ہم نے شروع مطالبہ پورا کیا، ہمارا مطالبہ آپ پورا کریں۔ کے مطابق چلائیں گے
अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। पहला झूठ वेखो बनाया कहंदा कुरान पढ़ा इदा रफा जानना की तलक वेखो झूठ नहीं बनाई दे इतराज सब तो पहले कीता मैनू मैंने झूठ नहीं बोला। आप खामोश रहने के दरमियान में आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ झूठ करते रहते हैं, आपको कोई जवाब देता है? ये सही तरीका नहीं है आपका। एक मिनट आप बार बार ऐसे झूठ झूठ बोलते हैं, आप खामोश रहें। ये झूठ नहीं बोलना हौसला दे कर ओए हौसला दे कर झूठ नहीं बोलना ये वजह झूठ को लगा बोल कर दिया हौसला दे कर ओए अस्ताद में बोलन दे आज किया था बंद कर लगा क्या रहेगा टेंशन ना ले ये तीस तारीख का बाप है आज देखिए सुने अब्दुल्ला साहब, ये ज्यादती है। करो क्या बात सुने आप बात सुने। देखिए ये ज्यादती है, जब भी इनकी टर्न आती है ये बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। बीच में क्यों बोलते हैं? नहीं बोलते। मैंने ये नहीं कहा है। नहीं आप तो गौर करें, आप ये कर रहे थे या नहीं? बीच में बोले थे या नहीं? ये शुरू करें नहीं, ये बीच में बोले थे कि नहीं? मेरी गलत क्यों बोल दे रहे बोले थे ना? मेरी गलत क्यों बोले नुका तारे पहले पहले के ताने बात को सोचो आज फंस गए हो मुद्दे तारे आज मुद्दे फंस गए जान नहीं छोड़ती तरले करो इन्हें सारी जान चढ़ाओ आज पैरी पै दो इन्हें सारी जान चढ़ा के जान नहीं छोड़ती आज इनका छुड़नी जान आज आप इस तरह भाई आज नहीं जान छुड़नी आज पैरी पो आगे चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। कहंदे पहला इतराज एसएल दी तालीम तक कीता कहंदा कुरान दी आयत पढ़ी ते एदा रफा जानना की तलक ए किदा तरीका रफा जान जी ते मैं कि जिन्हें नबी दी मनु रब दी मन्नी और जिन्हें नबी दी मान के रफा जान की तो रब दी सब मन के कीती अल्लाह कहंदा खुदा गंजे को नाखून ना दे तो मौत तो दे लेकिन ये अदा ना दे। कहंदा तीन जगह तो पढ़ी हदीस ते तीन गिनदा कि मैं तीन गिनिया जी मैं क्या मेरा दावा है इन्होंने क्या आखिरी उम्र मैं पहली हदीस पढ़ के ते विखाया कि सहाबी आखिरी उम्र तक नबी दे नाल मैं सलाम करो ये बेचारे ने पैरी पाने सारी जान छड़ाओ मैं नहीं छड़नी जान हौसला करो बेचारे मिनट मिनट तरले कर दे उन्हें सारी जान छड़ा दियो देखिया नहीं तरले कर दे। फिर कहंदे मैं दूजी पढ़ी तीन मुकाम वाली भी पढ़ी चार वाली भी पढ़ी दावे के मुताबिक पूरियां पढ़ियां एक पढ़ी जिस तीन मुकाम का जिक्र ते मुसलसल अमल प्यारे पैगंबर दा सहाबी रसूल दा ताबी दा। फिर पढ़ी चार मुकाम वाली पढ़ी एक सहाबी तो अपना पूरा दावे के मुताबिक साबित की है। ठीक है मैं उन तीन हदीसां कौन नहीं दावे दा पूरी दलील आखिरी अयाम मैनू कहंदे वफात वाली कहंदे इब्ने मुबारक दा फैसला कहंदा अगे लिखिया हुंदा कि पीछे लिखिया हुंदा है दसो एक बंदे नूं मुतरब्बे करना आ भी हदीस पढ़न लगा ध्यान ना पढ़ी साबित नहीं हैगी ये ते अकलमंदी दी नामत है कि पहले मुतरब्बे कर दे सही नहीं हैगी हो मत किते गलती खा जावे पहला मुतरब्बे करता ये भी अकलमंदी दनाई दी गल है हुण दनाई दी गल भी झूठ बन गई लाओ समझ यार जल्दी जल्दी कहंदे इमामदार कुतनी ने क्या इसनाद हु सही हुन अरे क्या जी किस कदर जुल्म है मास्टर ने पढ़ लिखिया ये भी सबीले यहूद विचों अद्धी गल पढ़ो ते अगली छाड़ दियो इसनाद हु सही हुन व फीह लफ्ज़तुन लैसत बिमहफूज़तिन ये इन्ने वक्त पढ़ी कि ए महफूज लफ्ज़ ए लफ्ज़ महफूज नहीं है ए लफ्ज़ महफूज आप तो दारकुतनी दा फैसला दी आ देखो ठीक है अब तो नून बेबाज़ किताब है पर तकफरून बेबाज़ हां फिर कहंदे अगे सबर तिरमिज़ी ने कहंदे तिरमिज़ी दा फैसला मैं क्या जी इन्हां ने फैसला इमाम तिरमिज़ी दा बयान कीता ते मैं जो आज इमाम तिरमिज़ी दा बयान कर फिर कहंदे जी अगो मेनू कहंदे ने कहंदे एक मिनट यार छड़ दे मैं सारे पढ़ांगा हौसला करो कहंदे अब्दुल्ला बिन मसूद ईसाई मैं क्या एक दिन च दो रफाजान कर दे शुरू वाला वितरण वाला आज एक दा इनकार आप कर गए जे सिर्फ पहली वितरण छड़ गए जे अच्छा मैं चार तेना मुहल्ले च रुकू जांदे उठदे ते तीजी दी नफी कोई दी ईसाई है नहीं भी नहीं है फिर कहंदे आगे हुन तो इस्तगफार शुक्र दा तौबा कर लेकिन अस्तगफिरुल्लाह करोगे तौबा हौसला करो शुक्र एडवांस ही कर दी
दे आगे देखो कहंदा मैं कहंदा जिन्ना 8 ने सही किया उन्ना 8 ही मैं नहीं कि उन्ना 8 ही मैं इधर भी गिनती 8 ते इधर भी गिनती 8 दी इन्हां ने 8 किने जवाब च गिनती 8 दी किया सी गिनती 8 पूरी करके सुनाई है नहीं आउंदी ते दोबारा किसी पुराने मास्टर को दाखला ले लो फिर कहंदे ओए सारे शाफी सन जिन्हां सही किया देखो कहंदे 4 इमाम मुतलक ने उन्हां च इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह आउंदे ने बिल्कुल दसो हुन तो भी शाफी दे मुकल्लिद के मुतलक सन ए झूठ है कि नहीं अब्दुल्ला साहब नोट करो नाम अब्दुल्ला काम झूठ नाम आसम उत्तो झूठ कहंदे इमाम मालिक दा अमल लाज किताब सुन्ना दे विच इमाम बगवी रहमतुल्लाह लिखिया इमाम मालिक दा आखिरी अमल रुकू जांदियां उठदियां रफा यदैन करना और फिर कहंदे ने सबर करो कहंदे इब्ने अरबी नु मौलाना याह्या गोंदलवी ने ज़ंदीक किया अल्लाह दे फजल नाल असीं ते हर बातल अकीदे दा हुक्म बयान करने आ पर ताड़ा शेख अकबर है ओ तानू ते ए दस्सिया ताड़ा शेख अकबर सब तो बड़ा उस्ताद ताड़े सब तो बड़े बुजुर्ग भी बयान ने जेड़ा मानव हासिल करन दिया नहीं बनदा ओ ए नहीं हो क्यों पिस्तौले बना दे बैठ के ए हो जे काम नहीं करीदे फिर नस्बुर आया जो पढ़ी इब्ने औन दी रात ले आओ जी जरा मजमूआ साहब दियो इन्हें इब्ने औन दी रात पढ़ी हक बनदा सी इमाम बैकी तो लेके ते अब्दुल्ला बिन औन तक संद पेश करदा अद्धी संद पढ़ी पूरी संद है ही नहीं नस्बुर आया मैं चाहे ना कहना पूरी संद नहीं है एक एतराज आसफ एतराज लिख मौलवी अब्दुल्ला कोई बहाना पा के जान छड़ानी ए बिलो क्या कहंदा मैं फस गया जान छड़ा यार गल कर 2-4 मिनट ये नहीं छुड़नी सबर यार कहंदा ए मास्टर मीनू काढ़वी मजमूआ रसायल सफा 120 कौन का इब्ने मसूद से सिमा नहीं सुभान अल्लाह कौन का इब्ने मसूद से सिमा नहीं और आगे लिखिया नस्बुर आया काल अल हाकिम कहना बहकी खिलाफियत आगे इमाम के काल अल हाकिम हाजा बातिल मौजूअन मन करते बढ़ के मुहद्दिस दा फैसला पी गया ताकि पता ना लगे गल की है ओए लिया जी बहकी आओ मेनू लिया जी बैठ दियो जो लिया जी नबी सलाम दे प्यारे मारूफ का पेश की थी अगे ही लिखा ओ राह मिन शवाज़िहा एक शाज दी ज़ईफ रवायत वो अगे ही लिखा ओ राह मिन शवाज़िहा ओ देखो लिखण वाला 361 च मर गया ते आ जाके 5वीं सदी च किताब पूरी हुंदी किताब लिखण पूरी होण च ते जिहदे नाम मनसूब है उन्हां च 122 साल दा फर्क है एडा फ्रॉड देखो ए मेरे अब्दुल अब्दवी नबी सलाम दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया मुरू बाबकर फली युसल्ली बिन नास जिंदगी दे आखिरी दौर दा इमाम आखिरी तकलीफ और राफियत होवे हाय की कहंदे ने तोजो ना पड़िया जे सुनो की कहंदे अबू इस्माइल कहंदे ने सल्ले तो खल्फ आरे नबी नोमान साके बाहर आ गई है आसा जो करने ला आसा करो ठीक है चलो मैं आ रहा हूं अबू नुमान पीछे नमाज पढ़ी फर आए तो मैं देखिया राजा फौजदा ही ना सलाह वही ना रखा वही ना फरा कर कुए कहंदे ने आरम नमाज शुरू कर दे रुकू जांदे उठदे रफाइदान कर दे तवज्जो ना कहंदे आरम कहंदे मैं पूछया एक ही है कहंदे मैं हमाद बिन ज़ैद पीछे नमाज पढ़ी हमाद बिन ज़ैद नमाज शुरू कर दे रुकू जांदे उठदे रफाइदान कर दे मैं पूछया एक ही है हमाद कहंदे ने भाई शोर ना करो हमाद कहंदे ने मैं तसल्ली तो खल्फ आई मैं अय्यूब क्या को पढ़ी लावा लो मैं नहीं जाओ बात बच्चों की मम्मी बैठ शोर हो रहा है आपके साथ एक चुप करो ये सब गाल है हजरत कदी ओदे तरले कर दे जान छोटे कदी बाहर शोर होने जान नहीं छुटनी जान नहीं कदी ए काम लोग इंतजामिया वाले जुरो को साडे ए काम बरा करो ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਕਰੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਨਾ ਖਲ ਨਾ ਪਾਓ ਅੱਜ ਗਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮ ਨੇ ਪੜੀ हम्माद बिन ज़ैद के पीछे नमाज शुरू कर दिया रुकू जांदे उठदे रफा जान हम्माद ने नमाज पढ़ी इमाम अयूब सख्तियानी के पीछे कहंदे लेकिन नमाज शुरू कर दिया रुकू जांदे उठदे रफा जान अयूब सख्तियानी ने नमाज पढ़ी है इमाम अता बिन अबी रिबा इमाम अबू रिफा दे उस्ताद के पीछे जिन्होंने फरमाया मा रअई तो अफजल मिन
अता इब्न अबी रिबाह इमाम साहब फरमाते ने मैं अता बिन अबी रिबाह तो कोई अफजीलत वाला देखिया ही कोई नहीं। अता बिन अबी रिबाह फरमाते ने मैं नमाज पढ़ी अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह दे पीछे नमाज शुरू करते रुकू जाते पढ़ते रफायदान करते अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते ने मैं नमाज पढ़ी सिद्दीक़ अकबर दे पीछे नमाज शुरू करते रुकू जाते पढ़ते रफायदान करते वो कहते मैं नमाज पढ़ी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे प्यारे पैगंबर नमाज शुरू करते रुकू जाते पढ़ते रफायदान करते यारो मेरे नबी ने कीता सिद्दीक़ अकबर ने कीता सिद्दीक़ अकबर नु वेख के अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कीता मेरे नबी ने छड्या हुंदा सिद्दीक़ अकबर ने करदे सिद्दीक़ अकबर छड्या हुंदा ओ यारो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने करदे अब्दुल्ला बिन जुबैर ने छड्या हुंदा अता बिन अबी रिबाह ने करदे अता बिन अबी रिबाह ने छड्या हुंदा यारो अयूब सख्तियारी ने करदे अयूब सख्तियारी ने छड्या हुंदा हम्माद बिन ज़ैद ने करदे हम्माद बिन ज़ैद ने अगर छड्या हुंदा ओ यारो आरिम ते ना करदा सुभान ना सहाबी ने छड्या ना ताबी ने छड्या ना तबा ताबी ने छड्या ना इमाम मुहद्दिसीन ने छड्या सुभान अल्लाह यारो ए जिन्नु नबी ने इमाम मुकर्रर कीता मरू अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास ए मोहताज इमाम मालिक पेश कीती मुदवना कुबरा मैं इमाम मालिक दा अमल पेश कीता अल्लाह दे फजल नाल पेश कीता मोल सब पूछण दे सी लुकमा पे लेंगे सब पता नहीं लगा तानू पूछण दे सी हुन की कहना उठ के सबक पढ़ रहे थे हां जी वो मैं ताई कहना असर साहब ध्यान देकर करो ए देखो जी की कहंदे ने ए इमाम मालिक दा मोहताज इब्ने कासिम दी रिवायत कहंदे ने इमाम मालिक कहंदे इब्ने शहाब तो इब्ने शहाब सालिम बिन अब्दुल्ला बिन तो सालिम अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला बिन उमर तो मैनू कहंदे मैं अब्दुल्ला बिन मसूद दी हदीस इन्हां को तसीब खाई मास्टर की रिकॉर्ड ने सुफियान मुदल्लिस कहा ते मौला सरफराज ने खजाना सुमन मुकदमे में लिखा पहले सफे ते मुदल्लिस का आना हुज्जत नहीं होता जब तक तसरीह ना हो करो भी ज़ोफ आ गया चलो आगे इमाम मालिक कहते इब्ने शहाब से इब्ने शहाब सालिम बिन अब्दुल्ला से इब्ने उमर से अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान जगत सलाता जब नाशु करते रफा आज दही है हज़्व मन की रही अभी जवाब ये देंगे सबसे पहले इस बात का, क्योंकि इन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वज़ाहत कर दी कि इन्होंने क्या कहा था, आखिर हयाती से इनकी क्या मुराद थी, क्यों पेश किए थे इस्तिदलाल, इन्होंने वाज़ेह कर दिया और इन्होंने ये फिर आप बाद में मिलिए इन्होंने जवाब दिए। अब इनके अल्फाज ये थे कि मैं जो हदीस पेश करूंगा, फर्स्ट रन थी इनकी, पहली रन थी, उसमें इन्होंने कहा था कि मैं जो हदीस पेश करूंगा उसको 10 मुहद्दिसीन ने सही कहा होगा, 10 मुहद्दिसीन ने सही कहा पेश करूंगा जिस हदीस को नसाई से अब नसाई पे आप देखिए, ठीक है, ये नसाई उन्होंने मुझे भेजी तो है, लेकिन इसके अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस के बाद, जैसे इनसे कह रहे थे ना कि फैसला पहलू होता है कि बाद होता है, दूसरी बात यह है कि फिर इन मुहद्दिसीन ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस को सही कब कहा है। तीसरी बात यह कि इन्होंने ये कहा था, अगर ये सच है, कहते हैं नसाई के दूसरे तीसरे सफे में, ये सफा नसाई का है जो आपने पेश किया था, दूसरा तीसरा सफा नसाई का है, ये नसाई का है। एक मिनट सब्र करें, ऐसे थोड़ी दो, ये सफा नसाई का है जो आपने पेश किया था यार, किताब का नाम मैंने शुरू में लिया ज़ारुल रिबा, आपने कहा नसाई का दूसरा तीसरा सफा है, इबारत नसाई की क्यों, नसाई से क्या मुराद है, नसाई से क्या मुराद है, तुम बता वाला है कि नहीं, नसाई में नहीं है, नसाई में नहीं है, झूठ 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 झूठ, नसाई में नहीं है, नसाई में नहीं है, नाम लो ना किताब का। अच्छा ये नसाई है, ये नसाई है, और यार किताब और ये नसाई है, हाशिए वो कह रहे हैं नसाई, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो चुके बंदे झूठ बोला है, नसाई में दिखाओ ये लफ्ज, नसाई के अंदर दिखाओ कि इसको 10 या 8 या 9 जो भी आप कह रहे थे कितने मुहद्दिसीन ने सही कहा है, ये दिखाओ, ये नसाई है, ओ भाई ये नसाई है, देखो ये इसकी नसाई है, यार दिखा ना, एक मिनट, ये इसकी नसाई है, मेरी बारी है, सब्र करें, आप मुझसे मुखालिफ हो, सुना, एक मिनट सब्र करें, किताब लेके दो, अब किताब बाहर किताब लेके दो, नहीं दूंगा, नसाई है,
और सुनो बड़ा भाई अपना बड़े प्यार से अपना झूठ सुनो, अपना झूठ सुनो, फिर कहता है किताब दो, अपना झूठ सुनो, किताब दोगे ना, अपना झूठ सुनोगे कि नहीं, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं किताब आपने सच्चा वाला पेश किया, पढ़ने क्यों नहीं देते? सुनो, इसके अंदर जो इसने निशान लगाए रेड लाइन की रेड लाइन, इस रेड लाइन के अंदर जनाबे वाला एक नाम लिखा हुआ है किसका? इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह को भी शुमार कर रहे हैं किसमें? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस को सही कहने वालों में, जबकि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के इस हदीस के बारे में मेरे मुनाज़िर हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना याया आरफी हफ़िज़हुल्लाहु व रआहु उन्होंने तलखीस इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की अपनी किताब दिखाई कि जिसमें तलखीस इब्ने हजर की नहीं है, 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 बाबा जी जाते गए तो शाह हो गए अब पंजा मैं जवाब दूंगा, बात मुकम्मल करने दो, बात मुकम्मल करने दो, क्या कह रहे थे? सदर का टाइम बराबर होगा, मुझे बोलने दो, शोर करोगे? पहले बात सुनो, इन्होंने जो हवाला पेश किया मुझे बात करने दो तसल्ली से। झूठ का सबूत आपने कहा, सबूत लो, आपने मुझे बात सुने तसल्ली से। आपने एक नाम पेश किया जनाबे वाला, ये नसाई है, इसकी हाशिये को नसाई कह रहा है, हाशिये को नसाई कह रहा है, हमें मतलब कार तिफला तमाम शुद। देखो मौलाना कहते हैं हाशिया नसाई है। अच्छा, इसके झूठ का सबूत कि मैं जो हदीस पेश करूंगा अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस, बात करने दे, वो भी जवाब देगा, टाइम बराबर करें। आप टाइम चेक करें, आप टाइम चेक करें, 5 मिनट का डेढ़ नहीं हुआ था, बात मुकम्मल करने देंगे? नहीं, मेरी बात सुनते ही नहीं है, इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, इनको कहेंगे सुने, आपने बात नहीं सुनी है मेरी, आपको बात सुननी पड़ेगी भाई। इन्होंने कहा कि मैं जिस हदीस को पेश करूंगा इमाम नसाई की, उसको 9 मुहद्दिसीन सही कहेंगे, तो फिर जवाब में नसाई का हाशिया दिखा रहे हैं। अब हाशिया लिखने वाले मुहश्शी इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, और कौल किसका पेश हो रहा है? नसाई का। मेरे भाइयों, अल मुहतवा इसका नाम है, अल मुहतवा नसाई नहीं है, हाशिया का नाम अल मुहतवा, हाशिया का नाम अल मुहतवा, अल मुहतवा। चलो आपके कैमरे में भी आ जाए अल मुहतवा। दूसरी बात कहता है हाफिज इब्ने हजर का भी नाम लिखा हुआ है, हाशिये में जो सबक पेश किया उसमें हाफिज और सुनो, तीसरा नाम इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह का भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इमाम दारक़ुतनी का भी लिखा हुआ है। ओ भाई आया आरती, आपने पढ़ा तो था कि इमाम दारक़ुतनी ने इस हदीस को सही कहा है, कैसा झूठ बोलता है? एक झूठ में 10-10 झूठ तेरे शामिल हैं, और तुम अपना मुंह खोलकर कहते हो कि झूठ 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 झूठ। सुनो, ये आपने अंदाज शुरू किया था, बात सुनो तसल्ली से। वही सामने बैठाना था यार, ये क्या मशीनों के बीच में खड़ी है, छोड़ दो यार, ये कैमरे
गाड़ी में और उसके बाद कहता है तलखीस इब्न हजर की किताब नहीं है, कहता है तलखीस इब्न हजर की किताब नहीं है, हाथ में ली हुई है, हाथ में ली हुई है, कहता है तलखीस इब्न हजर की किताब नहीं है, तलखीस इब्न हजर की नहीं है। ठीक है। हाँ जवाब दो आप इसका। 4 झूठ मैंने पकड़े। इमाम दारक़ुतनी की तरफ आपने ये कौल मंसूब किया कि उन्होंने इब्न मसूद की हदीस को सही कहा। नो अल्फाज लिख देंगे, नो मुहद्दिसीन उसकी तस्दीक करेंगे, 9 10 या 8 9 उनमें एक नाम इमाम दारक़ुतनी का, इमाम दारक़ुतनी की जरा पेश कर दी, एक नाम बैकी का, इमाम बैकी इमाम दारक़ुतनी का लफ्ज़ महफूज नहीं है। हाँ इमाम बैकी की जरा है, और जनाबे वाला इमाम बैहक़ी की भी जरा है, इमाम दारक़ुतनी की भी जरा है, और हाफिज इब्न हजर की भी जरा है। और ये हाशिए के अंदर जो 3 नाम लिखे हुए उनको पेश करके क्या कहते हैं कि जनाब अब जो मैं हदीस पेश करूंगा इससे साबित होगा कि वो उस हदीस को जनाबे वाला इतने लोगों ने सही कहा है। 4 झूठ कम से कम पकड़े। 5वां क्या कहता है जनाबे वाला तलखीस इब्न हजर किसकी किताब नहीं, इब्न हजर की किताब नहीं है तलखीस। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है कि नहीं बोला है? जवाब दो। इन्हें आपसे कमजोर नहीं है। अब मैं भी बोलता हूँ दरमियान में क्या बड़ा टैक्स है क्योंकि आप तो नहीं वो जी गाल नहीं बोली अगली वाली टर्न बिठा देंगे वो इतनी तेजी नहीं पता चलता भाई जाने और फिर बार-बार देखी जाएगी। जो करो जी 7 मिनट आपने बात करनी। 7 मिनट बाद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जितने आदमियों के बारे में मुहद्दिसीन जिन्होंने इस हदीस को यानी सेहत पर मेरे मुनाज़र ने पेश किए थे कि इतने मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा है, उन्होंने ज़हर रिबा को में से उनके नाम पेश किए। इन्होंने कहा कि ये नसाई नहीं है जिसको इन्होंने पेश किया है, हमने कहा कि ये नसाई ही पर ज़हर रुबा है और नसाई पर तो जो करो ये नसाई है कि नहीं नसाई तो हमने जब सफा नसाई का ही बताना था। 1 मिनट अच्छा ये नसाई है, ये शुरू नसाई है, तो ये नसाई पर है ना, तो फिर हम किस किताब का नाम लेते हैं? जो किताब का नाम था हमने वही लेना था ना, इसलिए झूठ नहीं था। ये झूठ साबित करने के लिए खुद झूठ बोला गया है, इसलिए ये चीज साबित नहीं कर सके। और तवज्जो करो यार, मैं ना तवज्जो करो अज़म कर रहा रंग में रास्ता है, तवज्जो करो। जब ये मुहद्दिस कहते हैं कि नसाई की सारी हदीसें ठीक है, तो बताओ उस अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस को सही कहा कि नहीं कहा? और जब कहा कि नसाई की सारी हदीसें ठीक हैं, तो वो हदीस उसमें आई है कि नहीं आई? तो फिर क्यों ना सही हुई? दूसरी बात ये मैंने किताब दिखाना और खबरदार नहीं देनी, ये चुप कर क्यों दरमियान बोलता है? तो क्या करना यार, फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है कोई मसला नहीं, गाड़ी चलेगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मेरे पास आप कागना नहीं था, वो बीच में आपको मिला आप लिखा हुआ था वो मैंने लिखा हुआ है मेरे पास बिस्मिल्लाह। जी बोले मैं आपकी तरफ मैं लिख रहा हूँ आपकी बातें। अच्छा अरे नहीं लिख मैं तो ज़बानी फिर फेरा तो आगे ना मैं जवाब देनी है ना, मैं जब मैं लाऊंगा जवाब मैं फिर याद करा दूंगा यार नहीं कर रहा अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है कि मैं आपको देखता हूं तो जरूर देखूंगा। चलिए आपकी ख्वाहिश साहब ने कहा जो करो हमारी खुश मिजाजी बात हमारी 1 मिनट प्यार है, प्यार आपस हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हम बैठे हुए हैं सीखने के लिए, कोई हमें तो समझ सीखना चाहते हैं आपस में, आप हम प्यार कर रहे हैं, प्यार से बात बहुत कभी नहीं करना मैं प्यार कर रहा हूं। तो जो करो भाई टाइम अब मौलाना साहब ने कहा कि आपने नसाई के हाशिए से पेश किए हैं मुहद्दिसीन जिनने तस्हीह की है, ऐसे कहा जी। ओ खुदा की कसम नसाई के हाशिए से तू दिखा दे, मैं शिकस्त लिख देता हूँ। ये फिर खड़ा हो गया
ना यार, मेरा काम लगे है, सब खड़े हो जाएंगे यार, क्या पता देना यार। सर जी एंकल भी तो बिठाओ ना। एक बंदा बीच में खड़ा हो जाएगा, भाई क्या तो क्या फायदा। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, जवाब दूंगा नहीं, इसको बोली बोले मेरा फजूल खड़ा के मकसद है यार। दादा कीता नसाई दा इसको पेश करने दा हाशिया हुन दसो नहीं हाशिया नीचे किताब चुस्सा ना कोस नहीं नहीं नीचे बैठो यार। ये पिस्टल कटा ये तो कमेंट कर दे यार। जल्दी बढ़ाओ ना। अब जवाब दे, ठीक है जवाब आसफ भाई नहीं जान छोड़ी आज छोड़ो नहीं मत करो आज लेके मत करो भाई तो साथ है। आप बात करें, शोर न करें, शोर न करें, शोर। मैंने एक बात की है, बात करें, मैं जवाब दूंगा ना, टाइम शुरू करो। हाँ, मैंने कहा था तवज्जो कर लो, कि हमने किताब का हाशिया पेश नहीं किया। इन्होंने कहा किताब का हाशिया पेश। मैं कहता हूँ और हाशिया दिखा, खुदा की कसम शिकस्त लिख दूंगा। नहीं शुरू होगा, ये चुप करेंगे तो शुरू होगा। अच्छा एक मिनट इनने कहा हाशिया है, मैंने कहा हाशिया नहीं है। इनने कहा दाराकुतनी ने ज़ईफ कहा है, दाराकुतनी मैंने कहा था इसकी सनद सही है। पढ़ा था मेरे मुनाज़र ने कि नहीं पढ़ा था। और इन्होंने कहा कि आगे पढ़ो, लैसत पे महफूजा, और महफूज नहीं है, अगली भी पढ़ो। और सुनो मैं कहता हूँ उससे अगली भी पढ़ो। और ज़ाकर रहा अबू हुज़ैफा फी हदीस ही अली सॉरी वह कौलहू। और अगली बात है अबू हुज़ैफा का तरीक़ तू साबित कर दे, तेरी बात मैं मान लूंगा, अगर नहीं साबित तौबा कर। अबू हुज़ैफा का तरीक़ तू साबित कर, मैं तेरी बात मान लूंगा। अगर अबू हुज़ैफा का तरीक़ नहीं है तो फिर इस पर जरा नहीं है। अगली बात तो जो करना बड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी। आपने कहा और तुमने कहा कि 9 मुहद्दिसीन में तुमने पेश चुप करो यार, चुप करो। तुमने कहा
9 मुहद्दिसीन में तुमने बहकी पेश किया, हमने उसे ज़ोफ साबित किया। खुदा की कसम बहकी दिखा यहाँ और नहीं है बहकी। झूठ है, जुर्रत है साबित कर। और बात सुनो, 9 मुहद्दिसीन में कहा तुमने इब्ने हजर का नाम लिया, उसने सही कहा, मैंने ज़ोफ का साबित किया। और खुदा की कसम 9 मुहद्दिसीन की तस्रीह में इब्ने हजर तू पेश कर, मैं लिखता हूं। मैंने कहा और सुनो, मैंने कहा था और तेरे मुनाज़िर ने 2 हदीसों को एक कहा है और जुर्रत है मेरी तरफ चैलेंज कर, साबित कर, खुदा की कसम मसलक छोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ तुमने एक हदीस की जरा को दूसरे पे फेंक किया और झूठ है। सदर मेरे इस चैलेंज को कबूल करके उसके साबित कर। माशाअल्लाह, मैं अपना वक्त देता हूँ तुझे। इसका कितना वक्त बाकी है? इसका कितना? और जितना भी है तेरा कितना बाकी कितना है? और टाइम हो लेता ना, मेरे हाथ अपने चैलेंज से हटने नहीं दे। अब शोर नहीं करना। आप देख रहे हैं बुजुर्गों कि जब ये बोल रहे थे हम खामोश रहे, लाइट जाने से पहले भी और लाइट जाने के बाद भी। अब ये अगर दरमियान से बोला तो ये फिर इसकी शिकस्त नहीं होगी, दरमियान में नहीं बोलेगा। लाओ भाई किताब लाओ, किताब लाओ नसाई। सब दे दाने मुक गए यार, नहीं दे रहे। तलखीस तो अभी वापस करें। तलखीस दो, ये भी दो, तलखीस भी दो। तलखीस एक तलखीस आई है। तलखीस दे नाल जोड़ ते बड़ा इब्ने हजर दा महला अखा खुलियां रह जानियां सारी जिंदगी वास्ते। देख तू क्या तलखीस है, तलखीस और कबीर दो ना, दे दो ना। ये तो ना वाला पढ़ना है, कैसे लेके यार सारी तलखीस नहीं जाती। तलखीस दो, भाई तवज्जो करें, फिर वक्त शुरू होगा। खामोशी होगी तो वक्त शुरू होगा। ये भी खामोशी मांगता है। हाँ, सब खामोश हो जाओ। देखो खामोश। अब्दुल्ला साहब इधर, बिस्मिल्लाह। प्यारे भाई अब्दुल्ला साहब को मैंने पहले कहा था कि सिंध का कराची का मुनाजरा या पंजाब का, क्या कह रहे थे? पंजाब का। अब निम दो पंजाब के मुनाजरे को। सुनो, इस महफिल में झूठ झूठ का लफ्ज़ पहले मेरे ख्याल से आसिफ भाई ने इस्तेमाल किया, ठीक है? मुफ्ती आसिफ मुल्तानी साहब, मुफ्ती आसिफ मुल्तानी साहब ने कहा कि नसाई में लिखा है, दूसरे तीसरे सफ़े में नसाई में, ठीक है? अब कह रहे हैं कि नसाई में लिखा है, ये इनका मजबूरन इनकी आदत, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह कहना कि इन्होंने झूठ बोला, लेकिन इनकी आदत अब क्या करें, इनको ऐसे ही समझाया जा सकता है। तो जनाब कहते हैं कि झूठ बोला, हालांकि इनके उसूल के मुताबिक तो फिर ये झूठ है क्योंकि ये नसाई नहीं है। ये देखे लिखा हुआ है ज़हर रुबा, ये देखे बोला ना अब्दुल्ला आ कर रहे थे, ये देखिए गौर से देखिए, हाँ, और ये ऊपर नसाई है, ये ऊपर नसाई है, सुनो, ऊपर नसाई है और नीचे क्या है? ज़हर रुबा है। और एक मिनट समझ करें, इंच, और ये देखें ये सिंधी अब्दुल्ला साहब इत्थे साढ़े वाल तक सजना तक ने सही हुण तकदा नहीं। इत्थे देखो ए सिंधी दी किताब आ, ए कहदी किताब आ सिंधी दी इत्थे ते ए ज़हर रुबा अल्लामा सुयूती दी किताब आ। ए कह रहे ने कि ए नसाई या नसाई केड़ी किताब आ? नसाई। अल्लाह की कसम इसको तू नसाई साबित करके दिखा, शिकस्त मैं लिख के दूंगा। और सुन, अगर अब भी समझ में नहीं आई तो सुन, तेरा मास्टर भी बच्चों को समझाता था, आज तेरे मास्टर की तरह चल, मैं भी बच्चों
तलखीस उल हबीब इब्ने हजर लिखा हुआ है। अब सुनो, इब्ने हजर ने अब्दुल्ला ने की थी, खामोश रहो, खामोश नहीं रह रहे, देखिए बुजुर्गों खामोश नहीं रह रही है, खामोश रखो इनको। अब सुनो, कहते हैं कि इब्ने हजर की जरा दिखाओ। इब्ने हजर की जवाब हजरतुल अल्लाम मौलाना याया अरबी साहब पढ़ चुके हैं। इब्ने हजर साबित करो जो उन्होंने नकल किया। सुनो, अब सुनो, ये किताब हौसला में करो। तफरीहुल खवातिर मौलाना सरफराज खान सफदर साहब घक्कड़ मंडी वाले गुजरांवाला के शेखुल हदीस मदरसा नुसरतुल उलूम के मासिया करीब में फौत हुए। क्या फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, क्या कौल नकल करते हैं? सफा नंबर 29 जनाबे वाला इन्होंने कौल क्या नकल किया कि सोम यानी थर्ड, तीसरे नंबर की बात, जब कोई मुसन्निफ किसी का हवाला अपनी तारीफ में पेश करता है और उसके किसी हिस्से से इख्तलाफ नहीं करता तो वही मुसन्निफ का नजरिया होता है, वही मुसन्निफ का नजरिया होता है। जरा मौलाना अरफी ने पढ़ दी और जनाबे वाला दिखा दीजिए कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तलाफ कहाँ किया। इख्तलाफ तो दिखाएगा, शिकस्त मैं तस्लीम करूंगा। अगर नहीं दिखा सकता इख्तलाफ तो तेरी शिकस्त है कि तुझे आज तक यह भी नहीं पता चला जो तेरे सरबराह ने तफरीहुल खवातिर के अंदर लिखा कि जब कोई मुसन्निफ किसी का हवाला अपनी तारीफ में पेश करता है और उसके किसी हिस्से से इख्तलाफ नहीं करता तो वही मुसन्निफ का नजरिया होता है। तफरीहुल खवातिर सफा नंबर 29 कहते हैं पंजाबी में मौलाना 29 चलो 29 आगे सुनिए। कहते हैं क्या इन मुहद्दिसीन ने सही नहीं कहा? इब्ने हजर ने जरा नकल नहीं की, तलखीस आपके पास नहीं आई, तलखीस आपके पास आई, हमने आपको दी, दोबारा भी ले लीजिए, सिबारा भी ले लीजिए, लेकिन दिखाइए तो सही इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह तस्दीक कब की है? अरे उन्होंने तो एक नहीं 8 जरा नकल की है। मौलाना आरफी ने पढ़ के सुनाया था, कहीं कानों में रूह तो नहीं डाल दी थी। ये सबक पढ़ रहे थे अपने हमजोलियों से, लगता है सबक पढ़ रहे थे। मुनाजरे से पहले सबक पढ़ के आते मौलाना, मुनाजरे से पहले। ये तीसरा झूठ, और झूठ का नारा इन्होंने लगाया था, मैं भी कहूंगा झूठ। कहते क्या मुहद्दिसीन ने सही नहीं कहा? इब्ने हजर में झूठ है या नहीं? ये 2-3 हो गए आपके। और कहते हैं दारक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह की जरा दिखाई कि नहीं? इमाम दारक़ुत्नी के बारे में भी ये झूठ। और फिर उसके बाद जनाबे वाला कहते हैं इमाम दारक़ुत्नी का हवाला हम दिखा चुके हैं। और उसके बाद जनाबे वाला कहते हैं खुदा की कसम ये हाशिया नहीं है, खुदा की कसम ये नसाई नहीं है, खुदा की कसम ये नसाई नहीं है। तो नसाई साबित करके दिखा, शिकस्त मुझसे लिखवा। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब को इमाम नसाई की किताब कह रहे हैं। इमाम नसाई दूसरी तीसरी सदी के, और ये जनाब उनके काफी अरसा बाद पैदा होने वाले इमाम नसाई की किताब को इमाम सुयूती की किताब बता रहे हो? यही तुम्हारा इल्म है? इसी का नाम इल्म है? इसी को इल्म कहते हैं? मुफ्ती आसिफ साहब मुल्तान से तखस्सुस किए हुए मुफ्ती हैं जनाब, आपका तखस्सुस यही कहता है कि इमाम सुयूती की किताब को क्या कह दो? नसाई है। नसाई, अल्लाह की कसम नसाई नहीं है, शिकस्त लिख कर दो ये नसाई नहीं है। आपके मदरसे से जाएं, कराची से लेकर खैबर तक, अकोड़ा कटक तक, अपने बड़े बड़े मदरसों में जाएं, आपका कोई एक मारूफ मुफ्ती लिख कर दे दे कि ज़ुहरुर रवा जो है ये क्या है? नसाई है। अल्लाह की कसम ये नाकारा, ये हकीर, ये वकील आपको अपनी शिकस्त लिख कर देगा। बोलो चैलेंज कबूल है? जाओ अपने मदरसों में बोलो अपने मुफ्तियों से कि हजरत साहब तखस्सुस तो पढ़ा दिए, हमें यह तक नहीं समझाया कि असल किताब क्या होती है और हवाशी या हवामिश में नकल की हुई किताब क्या होती है। मौलाना बस बराबर तब होगा जब तक मैं बोलूंगा तब तक ये बोलेंगे। आगे सुने, 2 मिनट दिया था, आगे सुनो, आगे सुनो। ये देखिए उस्मानी साहब, ये देखिए इबारत ही समझ में नहीं आई इनको। ये देखिए खामोश रहे। वापस ले लिए
किताब दो। मैंने पढ़नी है अभी, मैंने पढ़नी है। वो इसके बाद 2 नंबर लिख कर 2 नंबर लिख के 2 नंबर लिख के अदनान को दे दो। बल्कि जेब में डालो 2 नंबर लिखो ऊपर 2 नंबर। इसको कहते हैं टाइम देना। ये देखो कंजूसों की सखावत, टाइम देके ये बोलने भी नहीं छोड़ रहे हैं। मौलाना तुझे पता नहीं था, आज तेरा मुकाबला सिद्दीक रज़ा से है। इतनी जल्दी 2 मिनट नहीं देते, 2 मिनट के अंदर कमर के ऊपर लिखो, कमर के ऊपर यार। सुनो बात सुनो, 2 मिनट तुमने दिए, बाहर वाले के ऊपर यार, बाहर वाले पर। मैं नहीं दूंगा। 2 नंबर लिखो 2 नंबर। किधर ये करे कोई आम ये नहीं है कि हमारा गांव हो गया, हमारा इलाका है, ये हमारी इज्जत करे नहीं करने तो जा मत दो मेरे घर। ये बात नहीं है, आराम से मिलना है, आराम से करो, वो आराम से जवाब देगा, आप लोग आराम से जवाब नहीं और छोड़ो। बैठो नीचे नीचे बैठो। कौन भी बदतमीजी वाली बोल रही है और नीचे बैठना गंडे आइए, आराम से बात करो। तुम लोग पहले ही बोला, तुम लोग नहीं समझते। ओए किसको लेके गया भाई? दर्जा फिर लड़ने लगा, बुजुर्ग ना लड़ना। सामान यार सारे क्या सामान था थले बैठ जाओ, क्या हो गया? सारे बाहर चले गए ना। तुम ही जाओ पापा। इसको कहना कि कंप्यूटर मेरा बैठते क्यों नहीं होनी चाहिए यार? क्या तकलीफ है तुम्हें यार? मैं पंजाबी का लहजा ही बदतमीजी वाला बोल रहा हूं। बैठो जी भाई, बैठो जी सारे यार, बैठो यार। हाँ जी आगे जाओ यार। या ऐसा करें कि मस्जिद में चले जाएं। जिन्नू मर्जी भागे फैसला ले लिया जी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चलवा के, ठीक है? एक मिनट दुर्गो मेरी बात, उसकी मेजबान अच्छा मलेदारी है, ठीक है, तहरीर हो गई है, तुसी कीती हुई है, तुसी आप भाईजान बैठो ना, यही मसला खराब होता है ना, आप आ जाओ ना प्लीज यार। अगर तुसी चाहते कि और अमल चले इधर मैं इधर मौलवी कासिम जो बंदे ना तुसी ना वो बुजुर्ग ना अब्दुल्ला ते ना इमाम मेरी गल का जवाब उधर है जेड़ा बंदा मजमे बोले कल बड़े बात करता
عبداللہ نو بلایا اسا دونوں میزبان نے ایسی گل نہیں کراستے ٹھیک ہے اے ویڈیو بن رہی نا سنو نا میری گل بھی سنو وہ بلایا اسا گل سمجھن واسطے جڑا دعویٰ لکھیا ہے اس دعوے کے مطابق ایک حدیث پیش کرو کہ جڑا تسی فائدہ روزانہ عمل کرتے ہو او دے باقی روزے طرفداری کرنے ایدا جانے سننی او جڑا بندے پیاری بیٹھے جان چلا دے اسی طرفداری کرنے لوڑ نہیں کہے گا جان کیا ایک عثمان اس کو سائیڈ پہ کر کے دو باتیں سائیڈ پہ کرو بھائی ریکارڈنگ کرنا ذرا اینا بزرگوں میں بٹھاؤ آپ بیٹھ جائیں ہم لوگ بیٹھ جائیں میں سامنے آپ کو بول سکتے ہیں آپ سوال کا جواب دیں گے آپ کا جواب آپ دیں گے پھر آپ کو پوچھیں گے بیٹھ جاؤ امن قرآن میں نہ بولے قرآن بولے کتاب نہیں لے ویڈیو بنایا نام تعارف وغیرہ کرا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد خان نام ہے میرا, کوہاٹ کا رہنے والا ہوں. کوئی ساتھی دوست ملے تھے, وہ اہل حدیث تھے, وہابی جنہوں کو کہتے ہیں ہم لوگ. تو انہوں نے کچھ کیسٹیں دی تھی, کچھ خود وہ کیا تھا, کچھ مطلب کتابیں دی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عادت تتا آدر بٹے. میری زندگی ویسی گزر رہی تھی کیونکہ خاندان میں بھی ڈرتا تھا, کچھ وہ نہیں کرتے تھے. خود مطلب جب مجھے کسی نے کہا کہ جب فوت کی ہو تو فاتح کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤ, تو جب میں نے اپنے خاندان میں میرا بھتیجا فوت ہوا, میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو سب سے پہلے میرا اپنا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا, خاندان والے اور بہت چیز مطلب ہے. تو یہ اسی شک میں تھا کہ میں کیا کروں, کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح. میرا خود بھائی جو جماعت اسلامی سے تعلق ہے, اس نے ایم اے اکنامکس سعودیہ مکہ یونیورسٹی سے کیا ہے. تو وہ بھی ہماری نماز ہی پڑھتا تھا, نائل کیا کہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتا تھا, رفع دھیان کرتا تھا نہ کیا. جب اس سے میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں نہیں بس اپنی نماز پڑھو, ہم یہ ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایسا کوئی کروں کہ مطلب حق کا راستہ ہو, تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی مطلب ہے چلو, اور میرے خاندان میں کوئی نہیں مانتا تو بیوی بچوں پہ تو میرا وہ ہے نا. تو اس جستجو میں ہوتا تھا کہ کیا کروں کیا نہیں. آج اللہ تعالیٰ نے قدرتی بس اللہ جنت عمر درازی دے میرے دوست کو جناب عتیق صاحب. تو اس نے مجھے کہا کہ شاید اس میں مت پڑھو, آؤ اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھ بھی لو اور سن بھی لو. تو آج جب میں ادھر آیا ہوں, میں نے اپنے علماء حنفی حضرات کو بھی دیکھا ہے, وہابی حضرات کو بھی دیکھا ہے. تو اس میں نے یہ نوٹ کیا ہے نا کہ ایک جس شخص نے بلایا تھا ان کو کہ بھائی آئیں مطلب مناظرہ کریں اور حق کیا ہے سچ کیا ہے ہمیں وہ بتائیں. تو وہ ایک ماما تھا ایک بھانجا. تو جو بھانجا تھا وہ اس کا جھکاؤ بھی ہمارے جو حنفی حضرات ہیں ان کی طرف تھا. تو وہ جب کتاب پڑھتے تھے کہ بھائی یہ چیز ہے, تو جب وہ حبی اہل حدیث حضرات کہتے تھے کہ دو ہم ان سے غلطی نکالیں, جب انہی کی کتاب سے وہ غلطی نکالتے تھے تو وہ کہتے کہ جو بھانجا ان کو لایا تھا کتاب لو, دوسرا ادھر سے کہتا ہے کتاب لو کتاب, یعنی 6-7 ہاتھ پیچھے سے آتے کتاب لو. یعنی تو اس وجہ سے آج الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اور خاص کر یہ جو یحییٰ صاحب عابد صاحب, یہ تو اللہ اس کو لمبی عمر دے, اور صدر صاحب کو بھی, اور آپ سب ساتھیوں کو کہ الحمدللہ آج میں پکا ہو گیا ہوں. اہل حدیث
जैसे हम वहाबी भी कहते हैं, जो भी वहाबी का मतलब ये अल्लाह वाले, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पक्का शक दिल से निकल गया। अच्छा बुजुर्गों, सुना था वहाँ पे आपने नाम बताया शाहिद साहब। जी जी शाहिद साहब, सुना था कि आप उस तरफ करीब बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने गाली दी थी अब्दुल्ला साहब। मैंने उसी वक्त उनके सामने कहा था कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊपर, और उन्होंने मुझे मना किया था कि बस भाई आप कह रहे हैं कि, मैंने कहा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैंने इसको सुना है और साथ में देखा भी है, तो मैं कैसे झूठ बोलूं जिसका नाम आरिफ को गाली देते सुना भी है, देखा भी है। जो मतलब वो एक नहीं आसिफ, सॉरी, क्योंकि अब्दुल्ला वो जो सदर था, सदर नहीं उसके साथ जो बैठा हुआ था वो आपके साथ मुकाबला कर रहा था आसिफ, उसने कहा कि वो बहन चोत नहीं, वो अब निकल गया तो माफी की दुआ आपने कर लेंगे। तो बस मैंने सुना है अपने गुनहगार आंखों से देखा भी है और कानों से। बहरहाल ये चीज़ तो तकलीफ दे है ना कि दीन की मजलिस और बंदा इतनी गलीज गालियाँ दे, ये चीज़ होती है जो ऐसे लोगों का कहते हैं, अरबी का मुहावरा है अल इनाव या तरशाह बिमाफी है, बर्तन से वही कुछ निकला जो बर्तन के अंदर होता है। जिनके अंदर गंद है गंद निकलना है। अल्लाह के वजह से हमारे पास रब का कुरान है, हमारे पास प्यारे पैगंबर का फरमान है और हम दोनों ने गाली नहीं दी। असल में एक फरीक जब बोल रहा हो ना तो दूसरा फरीक खामोशी से सुने। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी ट्रेंड को खामोशी से सुने, लेकिन हमारी ट्रेंड में जैसे आप बता रहे हैं किताबों का मुताबिक अब किताब पढ़ी रहे, लाओ लाओ लाओ, यानी जानबूझकर उकसाने वाली शरारत करने वाली बात है कि किसी तरह। ये जो प्रोग्राम है पहले एक साथी गया उनको मोहल्ले वालों को मनाने के लिए, सदर साहब पहले एक साथी गया मोहल्ले वालों के मनाने के लिए, उनकी मिन्नत वगैरह की है तो वो राजी हो गए थे। अच्छा। उसने ये शर्त रखी थी कि जिस तरफ से भी दो आमने सामने, एक तो मतलब हमारे भाई साहब उस तरफ और वो ये और वो आपस में वो मुकाबला करेंगे, बीच में जो भी बोलेगा उनकी तरफ से इनकी तरफ से उसको बाहर मान गए थे। बहुत अच्छा। लेकिन फिर दो उनको तो मैं नहीं जानता, दो मौलवी उनके उठे हैं, उन्होंने कहा इनको बंद करो जी, इनको बंद करो। मोहल्ले वालों को कहा है, मौलवी अब्दुल बासित है इस महल्ले का देवबंदी आलम, तो उन्होंने जाके कहा। आपको किसने बताया? ये हमारे महल्लेदार जो है ना, जो भाई कारी साहब मस्जिद के, उन्होंने बताया कि मैंने बनवा लिया था। कारी अब्दुल बासित गया, हमारी इस महल्ले की मस्जिद का मौलवी है देवबंदियों का, उसने जाके कहा है कि जनाब ये मामला करो। और जिस पठान ने आके शोर किया है महल्लेदार ने, इन दोनों का आपस के घरेलू रिलेशन है, घरेलू तल्लुकात है। इस अब्दुल बासित ने फिर देवबंदी ने जाकर के उसको बकायदा उकसाया है और फिर उसको इस बात को अब मैंने गुफ्तगू नहीं होने देनी, क्योंकि अब ये फंसे होते बेचारे कभी तरले कर रहे थे उस भांजे के माई बाप बार उसको उठा रहे थे, कभी महल्लेदार के तरले करने लगे माई बाप इंटरनेट पर शेख साहब से निकलते हैं। शेख साहब इंटरनेट पर गुफ्तगू चल रही थी तो बाद साथियों के उस वक्त यानी कि कमेंट्स आ रहे थे साथ साथ, तो वो लिखकर भेज रहे थे कि यार हमने इनके मुंह से गाली सुनी है और वो गाली हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। देखो इंटरनेट रिकॉर्ड है ना, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। अब देखें इंशाल्लाह दुनिया सुनेगी कि कुरान सुनो किसने पढ़ा, गाली किसने दी है, ये फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। हम तो किसी ने कह रहे थे कि वीडियो बनी है ना, हमारी बनी है, आपकी बनी है, दुनिया के सामने आ जानी है। जिसके दिल के अंदर जो है वो हक की तड़प होगी ना, इंशाल्लाह जल्ला से सीना खोल। शेख सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह की ये आज मुनाज़रे का मौजू बना है, आप साथी से बखूबी वाक़िफ़ हैं। असल में यह नौबत इसलिए यहाँ तक पहुँची कि एक पिंडी का मौलवी है अंसर बाजवा नाम का, उसने बार बार यहाँ पर आके माहौल ख़राब किया, रोज़ाना मार्केट में आता था, लोगों को उकसाता था। यहाँ तक कि एक दिन ऐसे भी हुआ कि उसने एक बैठक में बैठकर हमारे कारी साहब को खुफिया तरीके से बुलवाया बगैर इतला के कौन आया हुआ है, इनसे उसकी गुफ्तगू भी हुई। तो अब तक उसने पीछा किया और जान नहीं छोड़ी। ये सारी की सारी शरारत जो की गई थी अंसर बाजवा की तरफ से की गई थी, और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इतना बहादुर निकला कि जब हमारे वाले इस मुनाज़र उसके सामने आए तो वो जालिम आगे एक लफ्ज़ भी नहीं कह सका, बल्कि दूसरों का सहारा उसने लिया है। खुद अपने आप को बहुत बड़ा मुनाज़र कहलाता, कहता कि मैंने तालिबुल मान शाह साहब को मुनाज़र हराया, ये किया वो किया, और जब हमारे मुनाज़र आए हैं तो एक लफ्ज़ भी उसकी ज़ुबान से नहीं निकल सका। आप देख रहे होंगे कि मैंने बार बार आरफी साहब से भी कहा और दीगर साथियों से भी कहा कि इस बंदे को बुलवाएं ताकि पता चले कि ये बंदा कितने पानी में है। और आज के इस मुनाज़रे से जिस तरह कि उसका चेहरा उतरा हुआ था और इस तरह महसूस हो रहा था कि वो बंदा बहुत डरा हुआ है, पता चल गया है कि इस मुनाज़रे इस्लाम का पोल खुल गया है कि ये कितने पानी में है। और अल्हम्दुलिल्लाह
अंसर बाजवा क्या, इनका बड़े से बड़ा अगर पाकिस्तान नहीं तो दियोबंद से भी जाके ले आए तो अहले हदीस के एक तालिब इल्म के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मेरी इतनी ही गुजारिश थी, बाकी आप कारी साहब से गुफ्तगू करें। कार साहब वो नाम दसो बंदियां दे जेरे बाहर आके इन्होंने कहा तुसी मना लिया, वो गल दसो थोड़ी सी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। जैसा कि आपके भी इल्म में है कि ये मुनाजरा आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया है और इसमें हमें बड़ी खुशी हुई है, लेकिन ये मुनाजरा जो तय हुआ है ये अंसर बाजवा इस पूरे इलाके का बहुत बड़ा अपने आप को थम खिलवाता है। और हकीकत बात यह है कि इतनी इसने इस इलाके में आके इसको मस्जिद वालों ने निकाल दिया है और ये वैसे 2 कमरे लेके फिरता है। और इन लोगों से जो हमारे इस इलाके के हैं ये अच्छे खासे जिम्मेदार लोग हैं, खाने पीने वाले हैं, जिनकी अच्छी गाड़ी देखता है उसके करीब आता है और उससे पैसे लेता है, जिस वजह से ये सारे काम होते हैं। बहरहाल ये मुख्तसर ये बात ये है कि यहाँ जो है ना इन लोगों के पास ये आया और कहता था सिर्फ 3 घंटे आपके पास टाइम है। ये मुझे भी इसने कहा, मेरे साथ इसकी 4.5 घंटे रात को गुफ्तगू हुई थी, लेकिन ये फिर कहता था कि आपका बड़े से बड़ा मुनाजिर है तो सिर्फ 3 घंटे मुझे टाइम दें और उसके बाद मैं मुनाजरा करूंगा। लेकिन आज आप लोगों के सामने है कि ये इसने कोई बात भी नहीं की और बेगी बिल्ली की तरह बैठा था। और इतनी यानी इस तरीके से देखा जाए कि ये सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे उनके भी ये इल्म में है कि ये इस हवाले से कोई बात कर भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह। दूसरा यहाँ जो कारी अब्दुल बासित साहब हैं ये और दूसरे एक उनके करीबी और मौलाना साहब थे नूरुल इस्लाम मस्जिद के, इन्होंने मोहल्ले वालों को उकसाया और ज्यादातर इन लोगों ने, मैंने उनको बार बार कहा कि ये चलने दें, लेकिन उन्होंने इसको उकसाया और इन्होंने सबसे ज्यादती की और मुनाजरे को बंद करवाने वाले, खराब करवाने वाले और सबसे ज्यादा मोहल्ले वालों को खराब करने वाले, उनके ज़हनी टेंशन बढ़ाने वाले ये इंसान थे, जिसमें सबसे ज्यादा यानी अपनी शिकस्त को देख के ये बार बार भागते थे कि तुम फैर खोल दो, तुम इन पे कोई ना कोई हमला करो, ये पुलिस वालों को कॉल करो। ये इस किस्म का यानी मुनाजरा बार बार वो खराब करवा के ये हमें वहाँ से ख़त्म करवा के अपने आप की शिकस्त को यानी फतह में तब्दील करवाना चाहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो मोहल्ले वालों की रजामंदी से फिर हमने भी बंद कर दिया ये मुनाजरा। ये असल बात है, वरना हकीकत में इनकी कोई इस हवाले से कोई तालीमी बात सामने आई नहीं और आप लोग देखेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा कि कोई ऐसी बात इन लोगों के पल्ले में है ही नहीं। तो यही मेरी गुजारिश थी, बाकी इंशाल्लाह जो है ना मौके से फिर देखेंगे। से दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब और सुन्नत को समझने की, किताब और सुन्नत के अंदर अपने अक़ायद अपने अमाल को संवारने की और सारी ज़िंदगी अल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत करने की, इस पर अमल पैरा होने की, इसकी तबलीग करने की, नशर व शात की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम पर ईमान पर करे और मरते वक्त अल्लाह में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब कर दे और आखिरत में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत के अंदर जन्नत में दाखिला नसीब कर दे। अल्लाह मरज़ुक़ना शातन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलद रसूलिक।